Good morning, students. I, Kinnari Dave, welcomes you all for Standard 11, Unit 2, Structure of Atom, Part 14. In this part, just will revise first the postulate which was given by the Bohr, because here we are going to study the dual behavior of matter. So, the first postulate, as the Bohr said, the atom possesses the nucleus and electron revolves around it. So, here you are able to see that this is the nucleus, and here this electron are moving around it, and that path is called the orbit. So this is the first postulate, and here the n is equal to, you can see, 1, 2, 3 and so on. That is constant as for the radius and energy. Means the electron have constant energy, so it did not go into the nucleus. ये पहली बात है कि अगर n is equal to 1 में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो लूज नहीं होती है. सेम वे n is equal to 3 में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कांस्टेंट होती है. दिस इज postulate 1. Now postulate 2 about the orbit of electron will be constant till it did not get or emit the energy from somewhere. उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन या यहाँ पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट छोड़ के कहीं पर भी तब तक नहीं जाता है स्टूडेंट, जब तक उसको बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती नहीं है, या तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है, तब तक वो अपनी ही ऑर्बिट में घूमता रहता है. दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट. एंड as it gets energy, from the outer source, this electron from this level jump to the higher energy level. That is the meaning of second postulate. Then the third postulate says, when electron release energy, the loss of energy is in the form of radiation and wavelength. तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ स्टूडेंट, यहाँ से जब उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी हासिल करके जब वो ये जगह पे पहुंचा, और उसके बाद में जो भी लॉस होगा एनर्जी का, वो होगा रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और अ वेवलेंथ मीन्स लैम्डा. So that is the main postulate, and that energy, so E is equal to hc by lambda. hc by ये है third postulate. And the fourth postulate, in any of the body of mass. So now in this video you will try to understand about to overcome the drawbacks of the Bohr model and to develop a more suitable and the general model for the atom, that is known as the quantum model. सो बोर का पोस्टुलेट पढ़ने के बाद पहले हम बोर ने क्या अचीव किया था, बोर की थियोरी से साइंटिस्ट को क्या मिला था स्टूडेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं.
So Bohr theory has explained the stability of an atom. तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट कि बोर की थियरी से साइंटिस्ट को जो बात पता चली थी वो थी स्टेबिलिटी तो सबसे पहली बात बोर की उससे पता चला वो है स्टेबिलिटी एटम की स्टेबिलिटी पता चल गई साइंटिस्ट को. Then the second one is Bohr theory has helped in calculating the energy of electron in hydrogen atom and which is having the one electron. Means it is useful to calculate the energy. But energy is only for that species or only for the hydrogen which is having the one electron only. So the mathematically expression हम अगर इसके लिए लेते हैं so E is equal to हम यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. So E is equal to minus 2 pi square mass of the electron means ME e raised to 4 z square. Z is equal to the atomic number and E is equal to charge of electron divided by n square. N is equal to principal quantum number or we can say that value of the orbit that is 1 to infinite and r square. R is the Rayburn constant. That is the value. From this we can identify the energy of any of the orbit. अब ये जो था वो उसकी अचीवमेंट थी स्टूडेंट. अब उसका लिमिटेशन क्या था, बोर मॉडल कहाँ फेल हो गया. तो इट फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनल या टू क्लोजली लाइन. स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा उसमें बहुत क्लोज लाइन होती है तो उसकी डिटेल वो नहीं दे पा रहा था. दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम जेमन इफेक्ट भी कहते हैं. सो जेमन इफेक्ट Zeeman effect could not be explained by the Bohr model. तो ये एक उसका फर्स्ट फेलियर था स्टूडेंट. स्टूडेंट हमेशा कोई भी कॉइन होता है, द कॉइन हैज बोथ द साइड. सो पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ. तो यहाँ पर भी ये सब जो थी वो बोहर का अचीवमेंट था और अचीवमेंट के साथ साथ में कहीं पर भी वो उसको कहीं गलती भी हुई थी कि जो वो वहां सक्सेसफुल नहीं रहा था. दूसरा था अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. जो अभी हमने बात किया कि Li+ के लिए वो या Li+2 के लिए वो काम कर सकता है, Li+ के लिए नहीं. फिर He+ के लिए वो हेल्पफुल है पर He के लिए नहीं. तो जिसके पास में सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है ऐसे स्पीसीज के लिए ही वो हेल्पफुल है. एंड इट कुड नॉट
explain the ability of atom to form the molecule by the chemical bond. तो ये भी एक उसका माइनस पॉइंट है कि वो H2 मॉलिक्यूल बनता है या तो हीलियम जो है वो He2 क्यों नहीं बनाता है, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सो स्टूडेंट, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हमारे पास में सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये एग्जिबिट किया था कि द the matter possess the dual behavior like a light rays, and ये भी इसे ऐसा ही बताया कि पार्टिकल वेव्स भी होते हैं और वेव लाइक नेचर भी होता है, और जिसके ऊपर से हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो समझ पाए थे स्टूडेंट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या समझा था कि as the ball bounce back after striking it with the wall immediately, उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पार्टिकल नेचर है. अगर ये एक वॉल है स्टूडेंट और यहां से आप कोई भी बॉल थ्रो करते हो तो इमीडिएटली द बॉल बाउंस बैक, जैसे ही वो यहाँ पर टकराएगा सीधा ही वो वापस आएगा. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द मैटर, मतलब ये बॉल जो है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है. सो दिस इज द वन प्रूफ विच द डी ब्रोगली सजेस्टेड. और उसी तरह से अगर हम ऐसा सोचते हैं कि when photons strike with the metal, it transfer it energy to the electron present in the metal atom, and during the collision of electron comes out immediately. तो ये उसका जो है वो वेव नेचर है जो यहाँ पर मैंने बताया है स्टूडेंट कि ये जो है वो एक मेटल शीट है, यहाँ पर से फोटोन इंसिडेंट हो रहा है स्टूडेंट. जैसे ही वो इंसिडेंट हो रहा है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ये जो है दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम दिस पाथ दिस इलेक्ट्रॉन इज propagating. As the photon incident from here, this photon scattered and collision होगा. तो आफ्टर द कोलाइजन इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड इन एन अननोन डायरेक्शन, मतलब कि वो जा रहा था इसी डायरेक्शन में. यहाँ से फोटोन का एंटर होने से ये दोनों के बीच में ये पोजीशन में कोलाइजन हुआ. जैसे कोलाइजन हुआ तो थोड़े से फोटोन ऐसे स्कैटर्ड हो गए और इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी. This you are able to understand from the given figure. यही बात अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए समझे तो ब्लैक बॉडी मीन्स द while the radiation enter into it, some part absorb and some are transmitted and some are reflected. तो यही अगर हम ब्लैक बॉडी के लिए समझते हैं तो ये अगर ब्लैक बॉडी है स्टूडेंट तो ब्लैक बॉडी के अंदर इसी तरह से कोई इंसिडेंट रेज जो है उसमें से थोड़े बहुत जो है वो उस तरह से ट्रांसमिट हो जाएंगे, थोड़े से जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्टूडेंट, एंड थोड़े से है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे. तो यही फिनोमिना को हम यहाँ पर मैटर की ड्यूअल बिहेवियर से यही मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है. सो द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैज वेवलेंथ एंड मोमेंटम, ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है और रिलेशन बिटवीन द फोटोन वेवलेंथ के बीच में है
लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम न्यू, इसको v नहीं बोलेंगे, एम न्यू बोलेंगे, एम न्यू। और h इज प्लैंक कांस्टेंट जो है, और एम वी मतलब ये जो असलरेशन है उसे हम, ये मोमेंटम p इज इक्वल टू मोमेंटम, तो h बाई p भी कंसिडर कर सकते हैं। मास इंटू acceleration h by m nu is equal to mass into acceleration, that is known as the momentum h by p. So here you can say that every object in motion has a wave character, and larger the mass object cause very short wavelength. ये बात आप अगर एक पत्थर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो. If you are having the bigger size or stone, and if you thrown it from the second floor, then the mass is very high, so it immediately comes down, and while you are having the feather, you just leave that feather from the second floor, it comes very slowly. So the larger the mass, the shorter is the wavelength. इसी के ऊपर से हेजनबर्ग ने जो दिया वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने बताया. सो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or a velocity of an electron. उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसे भी हम अपना रेगुलर जो हम पढ़ते हैं या खेलते हैं उसी के साथ में को रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट. जैसे कि कोई एक बॉडी है, या आप अपने ही बारे में इमेजिन करो, आप खेल रहे हो स्टूडेंट, और खेलते खेलते आप गोल गोल घूम रहे हो, घूमते हो तभी आप देखोगे तो आपने ये पोजीशन से गोल घूमना शुरू किया है, और इसी तरह से गोल घूमते हो, और फाइनली जब रेस्ट पोजीशन में आते हो तो हो सकता है कि आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो यहाँ पर थी, और आपकी जो एंड पोजीशन है वो यहाँ पर है. तो हेजनबर्ग भी वो ही बता रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ में, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूम रहा है, सिर्फ गोल गोल नहीं घूमता है, वो एक्सिस के ऊपर भी, मतलब वो रोटेशन भी करता है और अपने इलेक्ट्रॉन के पाथ पे भी घूमता है. तो एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. तो इसी के बेस पे उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, दैट इज द अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू और और ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, ये उसकी वैल्यू है. सो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई. अब यहाँ पर डेल्टा x जो है उसे हम कंसिडर करते हैं पोजीशन. डेल्टा x इज अ पोजीशन. So delta x is a position, and then p तो हमें मालूम है, p is the momentum. So we'll consider p as a momentum.
और डेल्टा इसलिए लगाया है स्टूडेंट कि वो जो है वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो P इज इक्वल टू मोमेंटम. सो ऑलवेज द product of delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi, where h is equal to Planck constant. So here we can say that h is equal to प्लैंक कांस्टेंट है h. और अगर हम मोमेंटम को मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू v करते हैं, मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो भी फिक्स नहीं होती है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, इसलिए हम उसे भी डेल्टा पोजेस करेंगे. तो p इज इक्वल टू m v. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट ऑन करते हैं, तो वी गेट दिस इक्वेशन डेल्टा x इंटू m delta v is equal to greater than or equal to h by 4 pi. अब मास जो है वो हमेशा फिक्स होता है, इसीलिए मास को हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m. तो ये है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब स्टूडेंट ये देखना है कि बोहर का मॉडल फेल कहाँ कहाँ पर हुआ, उसने ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि बोहर मॉडल फेल हुआ और जिससे हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स मिले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का. और उसका रीजन क्या है बोहर मॉडल फेल हुआ, वो कि द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर इन बोहर मॉडल. तो सबसे पहले तो इसने क्या किया था कि ड्यूअल बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया था. And according to the Bohr model, an orbit is clearly defined path, and this path can completely be defined only if both the position and the velocity of the electron are known exactly at the same time. अब ये बता रहा था कि भाई हम कहीं पर भी किसी भी तरह से वो दोनों को एग्जैक्टली मतलब जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो बोहर का मॉडल कह रहा था कि हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है. पर स्टूडेंट इसके लिए तो अगर आप खुद भी सोचोगे ना देन यू विल ऑल्सो कम टू नो दैट अगर गोल गोल घूमते हैं तो 1 सेकंड के बाद या 5 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वो बॉडी कहाँ होगी, that is not at all possible to identify. So that is the main failure of the Bohr model. So this is not possible according to the Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg ने बताया है वो बहुत ही सही है जिसको हम अपनी रियल लाइफ के साथ में भी जोड़ सकते हैं. तो क्वांटम मॉडल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के अंदर हम देखेंगे तो ये बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है और which describe the microscopic particle but it is not at all useful for the macroscopic particle. तो ये बात भी यहाँ पर है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है the energy of electron in atom is quantized so that can only have the certain value. मतलब अगर वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि अगर वो n इज इक्वल टू 1 में है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वहां पर फिक्स होगी और जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी. सो ये बात आगे हमें जब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तब ये बात हम समझेंगे, पर अभी सिर्फ उतना ध्यान रखना है हमें
कि n की वैल्यू फिक्स है और वो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो बता रहा है, पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो भी फेल है, because the classical mechanics ignore the concept of dual behavior for subatomic particle and even the Heisenberg uncertainty principle. स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको न्यूटन का लॉ दिखाया है। ये जो फर्स्ट लॉ आपको बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंटिल इट डज नॉट गेट एनी ऑफ द फोर्स, मतलब यही बात तो हमने भी पढ़ा आगे बोहर मॉडल में कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली वो ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक उसके पास में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आती है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। एंड सेकेंड लॉ के हिसाब से हम देखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हमने यहाँ पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में भी पढ़ा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अगला हमारा टॉपिक रहेगा और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हम आगे के टॉपिक पे समझेंगे। होप सो आपको ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर से आगे के पोर्शन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक इतना याद करो, अच्छे से रिवाइज करो, स्टे होम, स्टडी वेल एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।